Hello, welcome class 10 student. Today we are going to start the new lesson Image, Links and Tables in HTML. In previous chapter you have learnt the basic concept of HTML. You have learnt about various formatting tags which help to develop and enhance the appearance of the web page. Apart from the text-based tag, you can also include images, graphics, audio clips and video clips on your web page and give a professional look to it. In this chapter, we are going to discuss about image, link and tables and how we can insert all of them in our web pages. The first topic is inserting images. Images, photographs. When we insert images in our web page, it enhances the appearance of the web page. It beautifies the entire web page and looks eye-catching and appealing. Images are used to beautify as well as to depict many complex concepts easily on your वेब पेज. अगर हम इमेज यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम बहुत ही सुंदरता के साथ और आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. Images can also be used as navigational tool to help user to browse through the web page. Web browsers support various graphics format such as GIF, JPEG, JPG and PNG. GIF graphically interchangeable format, JPEG joint photographic expert group, JPG joint photographic group and PNG portable network graphics. तो ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जो हमारा वेब ब्राउज़र सपोर्ट करता है. There are two types of images, inline and external images. The inline images is displayed when the web page is opened and is inserted within a line of text. इनलाइन इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जब हम वेब पेज ओपन करते हैं तो ये दिखते हैं और ये एक ही लाइन के अंदर ही कंटेन किए जाते हैं. Whereas external images is not shown automatically with other content on the web page. Instead, it referenced externally and viewed separately by clicking on a link. और एक्सटर्नल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिनकी लिंक दी गई रहती हैं. जब उस लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो वो इमेजेस ओपन होके हमारे सामने डिस्प्ले होती है. द IMG टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इनलाइन इमेज. अगर हम इनलाइन इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, जो हम मैक्सिमम केसेस में हम जो इमेज इंसर्ट करते हैं वो इनलाइन इमेज ही होता है, तो उस केस के लिए हम IMG टैग यूज़ करते हैं. इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे. टू ऐड एन एक्सटर्नल इमेज, द एंकर टैग दैट मीन्स A टैग इज़ यूज टू लिंक द इमेज. तो A टैग का यूज़ करते हैं हम एक्सटर्नल इमेज ऐड करने के लिए लिंक्स के फॉर्म में, और IMG टैग का यूज़ करते हैं अगर हम इमेज ऐड करना चाहते हैं, इनलाइन इमेज ऐड करना चाहते हैं. तो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज IMG टैग. द IMG टैग इज यूज्ड टू ऐड इमेजेस in an HTML document. It is an empty tag and requires different attribute to be specified with it. The various attribute of IMG tag tell the browser how to layout the page so that text can flow properly around the image. Let us discuss the attribute of IMG tag. तो IMG टैग एक स्पेशल टैग है. ये एक एम्प्टी टैग है जिसका यूज़ करते हैं हम इमेजेस को, इनलाइन इमेजेस को अपने वेब पेज में इंसर्ट करने के लिए. IMG टैग से जब भी हम इंसर्ट करते हैं इमेजेस को तो इसके साथ कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स हैं जिनका हमें यूज़ करना ही होता है, और कुछ ऐसे ऑप्शनल एट्रीब्यूट हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे.
तो पहला जो एट्रीब्यूट है, जो मैंडेटरी है, जो हमेशा हमें यूज़ करना ही होता है, वो है एसआरसी एट्रीब्यूट। एसआरसी एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करता है कि जो इमेज हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, मतलब उसका पाथ क्या है, कहाँ से हम अपने इमेज को इंसर्ट करेंगे। द एसआरसी एट्रीब्यूट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द सोर्स ऑफ एन इमेज while specifying the image file. One should be aware of its location, that is, where the file exists. To add and define the source of an image on a web page, we need to type img src is equals to address or path of the image file. अब यहाँ पे एड्रेस या पाथ ऑफ द इमेज फाइल, ये कई तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं। इनको हम फर्दर कुछ केसेस में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम केस की बात करें कि इफ़ द इमेज फाइल लेट अस से pic1.jpg lies in the same folder where the HTML file referred to is located, then we can refer the image file by just writing its name. जैसे कि माना गया कि अगर हम कोई HTML प्रोग्राम बना रहे हैं और बनाने के बाद उसको हम स्टोर कर रहे हैं किसी फोल्डर XYZ नाम के, किसी फोल्डर में हमने इमेज फाइल को स्टोर किया है और HTML फाइल को भी स्टोर किया है। मतलब अगर दोनों की दोनों फाइल, मतलब इमेज फाइल और साथ ही साथ जो HTML फाइल है, वो दोनों अगर एक ही फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो उस केस में हमें कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें केवल फाइल का नाम उसके एक्सटेंशन के साथ दे देना होता है। तो इस केस में हम लिखेंगे img src इज इक्वल टू pic1.jpg। जो हमारा इमेज है वो वेब पेज में ऐड हो जाएगा। सेकेंड केस की अगर हम बात करें कि इफ़ द इमेज फाइल pic1.jpg लाइज इन अ डिक्शनरी और लाइज इन अ डायरेक्टरी other than one in which HTML file is placed, then we can refer to the image by specifying the full path of the file. मतलब अगर हमारी जो इमेज है वो कहीं और स्टोर्ड है, किसी और डायरेक्टरी में, मतलब फोल्डर में स्टोर्ड है, और जो हमारी HTML फाइल है वो किसी और जगह पे स्टोर्ड है, तो ऐसे केस में हमें पूरा उसका कंप्लीट पाथ देना होगा। और कंप्लीट पाथ आपको देखने के लिए आप क्या करो कि किसी भी फाइल पे, कोई भी इमेज फाइल है उस पर राइट क्लिक करो और उसकी प्रॉपर्टी में जाओ। जब उसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे आप, तो वहाँ पे उसकी कंप्लीट पाथ आपको दिख जाएगी। जो सबसे पहले ड्राइव का नाम होगा, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो C:/, उसके बाद कुछ फोल्डर्स के नाम होंगे, तो वो उसका पाथ है। लास्ट में हम स्लैश लगा के फिर इमेज का नाम और .jpg लिख देंगे। जैसे इस केस में हमारा जो pic1.jpg है वो C ड्राइव के अंदर यूज़र्स फोल्डर में, कीप्स फोल्डर में, उसके अंदर पिक्चर्स फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए इसका कंप्लीट पाथ होगा C:/users/kips/pictures/pic1.jpg। तीसरा केस अगर हम कंसिडर करें कि इफ़ द इमेज फाइल pic1.jpg डज नॉट लाई इन योर कंप्यूटर and is located in the image folder of the web server like Google, then you need to give the full path of the file like img src is equals to http://www.google.com/images/pic1.jpg। जैसे अगर मान लीजिए कोई इमेज है जो इंटरनेट पे कहीं पे है, आपने उसको सर्च करके ओपन कर लिया। अब उस इमेज का अगर आप पाथ देख लेंगे, वो एड्रेस बार में डिस्प्ले होता है। उस पाथ को अगर आप कॉपी करके अपने एसआरसी एट्रीब्यूट में पेस्ट कर दें, तो भी वो जो इमेज है वो आपके वेब पेज में डिस्प्ले होगी। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन हो। बिसाइड एसआरसी, img टैग हैज़ वेरियस अदर एट्रीब्यूट विच आर एज फॉलोज। तो सेकेंड एट्रीब्यूट ऑफ img टैग इज alt एट्रीब्यूट। alt स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ब्राउज़र किसी कारण से जो इमेज है उसको प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं कर पाता है,
तो ALT के एट्रीब्यूट में जो वैल्यू हम देते हैं वो उस इमेज के जगह पे डिस्प्ले किया जाता है अगर इमेज किसी कारण से डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है। तो sometime a browser does not display image in case you can provide the text that you want to display in place of the image. The ALT attribute lets you specify text as an alternate to the image. Now, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की अल्टरनेट टेक्स्ट के, तो देखिए इफ़ द ब्राउज़र इज़ टेक्स्ट बेस्ड, जैसे मान लीजिए अगर हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र अगर हमारे पास अवेलेबल हैं एंड कैन नॉट डिस्प्ले इमेजेस दैन ALT एट्रीब्यूट कैन प्रोवाइड टू बी हेल्पफुल। जैसे अगर हमारे टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है और मतलब टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है मतलब हम उसमें इमेज डिस्प्ले ही नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में ALT एट्रीब्यूट बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा है ALT एट्रीब्यूट कैन डिस्प्ले अ फ्रेज इंस्टीड ऑफ द इमेज। इट कैन एक्सप्लेन योर इमेज टू द विजुअली चैलेंज्ड for whom the browser is programmed to read aloud the alternate text instead of displaying the image। तो जैसे अगर मान लो कोई विजुअली हैंडीकैप पर्सन है तो उसके लिए ये ALT बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है क्योंकि वो इमेज तो देख नहीं सकता है, लेकिन उसके ब्राउज़र में ये सेटिंग कर रखी है उसने कि जो भी टेक्स्ट वहाँ पे मतलब आएंगे वो उसको प्रोनाउंस करेगा, तो ऐसे केस में वो उसको सुन के उसको समझ सकता है। थर्ड, सिंस इमेजेस आर ऑफन लार्ज फाइल एंड समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिस्प्ले ड्यू टू हैवी ट्रैफिक और अनसपोर्टिव ब्राउजर, द यूजर मे एक्सपेक्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। मेनी पीपल सेट देयर ब्राउजर सेटिंग टू नॉट auto load the image. In that case, ALT attribute is used. The alternate text will give a description of the image. अब यहाँ एक नोट करके दिया है जो इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ ALT एट्रीब्यूट इज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग अप टू 1024 कैरेक्टर। मतलब हम 1024 कैरेक्टर से बड़ा कोई अगर हम फ्रेज डालना चाहते हैं तो हम नहीं डाल सकते, इंक्लूडिंग स्पेसेस टू, मतलब स्पेस को भी हम एक कैरेक्टर काउंट करेंगे। इनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क इफ़ यू इंक्लूड स्पेस और अदर पंक्चुएशन। नाउ अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि HTML हेड टाइटल क्लोज, टाइटल उसमें दे दी गई, बॉडी BG कलर इज इक्वल्स टू लाइट येलो हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया है। अब पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ लिखा है हमने IMG SRC इज इक्वल टू Santa workshop.gif, एक इमेज है, और ALT इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ द Santa हट, P क्लोज बॉडी क्लोज। तो देखिए यहाँ पे इमेज ऑफ द Santa हट अगर हम देखें, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले हो रहा है, दोनों चीज़ें यहाँ डिस्प्ले की गई है कि अगर हम SRC एट्रीब्यूट में गलत वैल्यू दे दें या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस केस में इमेज ऑफ Santa हट डिस्प्ले होगा, और अगर हम सारी चीज़ें करेक्ट रखें तो ऐसे केस में ये इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। टू ऐड एंड डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज ऑन अ वेब पेज टाइप IMG SRC इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ द पाथ ऑफ द इमेज फाइल। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा अलाइन एट्रीब्यूट। अब देखो अलाइन एट्रीब्यूट आप कई जगह पे देख चुके हैं कि अलाइन एट्रीब्यूट पैराग्राफ टैग के साथ यूज़ कर चुके हैं आप, वैसे ही अलाइन एट्रीब्यूट यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। तो अलाइन एट्रीब्यूट, विद अलाइन एट्रीब्यूट यू कैन अलाइन द इमेज with the help of align attribute. The align attribute behaves differently with inline and floating images. Aligning image or aligning inline images. So inline images are placed in middle of the line of text. We can align inline images in three different style. Align is equals to top, align is equal to middle, align is equal to bottom. Align is equal to top, it will align the top of the image with the top edge of the tallest character in the current line of text. If there are no other image in current line, the top of the image is aligned with the top of the text. Align middle अगर हम करेंगे तो it will align the middle of the image with the middle of the line of text, and align bottom करेंगे तो ये bottom में align करेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, देखो हम एक स्माइली फेस को
इमोजी को हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो है HTML हेड टाइटल बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू खाकी बी फॉन्ट साइज इज इक्वल टू ये हमने लिखा है। अब यहाँ से हम देखें IMG_SRC इज इक्वल टू इमोजी ग्रीन डॉट PNG अलाइन इज इक्वल्स टू टॉप। फिर हमने लिखा है दिस इमोजी डिपिक्ट्स द यूज ऑफ वेरी गुड टेम्पर एंड लाफिंग चेयरफुली। तो अलाइन टॉप किया है, तो ये देखो जो इमेज है वो टॉप अलाइंड है। फिर हमने लिखा बी फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 4 फेस विथ टीयर्स ऑफ जॉय। तो IMG_SRC इज इक्वल टू इमोजी जॉय डॉट PNG। अब यहाँ पे हमने लिखा अलाइन इज इक्वल टू मिडिल और दिस इमोजी शोज द यूज ऑफ यूज़र इज सो हैप्पी दैट ही इज शेडिंग टीयर्स ऑफ द जॉय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो मिडिल में अलाइंड है, ये टॉप अलाइंड थी, और लास्ट केस में हम क्या कर रहे हैं IMG_SRC इज इक्वल टू इमोजी एस्टोनिश डॉट PNG और अलाइन इज इक्वल टू बॉटम। तो इस केस में अगर आप देखें तो जो इमेज है वो बॉटम अलाइंड है। तो दीज आर द 3 अलाइनमेंट ऑप्शंस। अब अगर हम बात करें अलाइन फ्लोटिंग इमेजेस, अब इमेज को फ्लोट करा के हम अलाइन करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके के अलाइनमेंट होंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। पहले हम बात करें लेफ्ट अलाइनमेंट की, तो देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग इमेजेस मेक द टेक्स्ट टू रैप अराउंड द इमेज। इमेज कैन ईदर बी लेफ्ट अलाइंड और राइट अलाइंड। द पैराग्राफ विल फ्लो अराउंड the image for several lines if the image is large. Align is equals to left, it will place the image against the left margin. Align is equal to right, it will place the image against right margin. लेकिन अगर हमें सेंटर अलाइन करना हो इमेज को तो हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं कर सकते। तो इमेज के साथ ये एक प्रॉब्लम रहती है कि IMG टैग में अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो अगर हम सेंटर में अलाइन करना ही चाहते हैं फोर्सफुली तो ऐसे केस में हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं, मतलब हम सेंटर टैग लगाएंगे और सेंटर टैग क्लोज करेंगे और उसके बीच में अगर हम इमेज को पास कर देंगे तो वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें कि IMG_SRC इज इक्वल टू eyes1.jpg अलाइन इज इक्वल्स टू राइट किया है तो इमेज राइट अलाइंड है। ऐसे ही अगर हम कोई दूसरा इमेज लें और अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट करेंगे तो वो लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटरिंग एन इमेज। अगर हम इमेज को सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो क्या करें, तो द अलाइन एट्रीब्यूट कैन नॉट बी यूज टू सेंटर अलाइन द इमेज हॉरिजेंटली। द मिडिल वैल्यू ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट सेंटर अलाइन द इमेज वर्टिकली विद द करेंट लाइन बट नॉट हॉरिजेंटली। It can be done by using center element. The following code explain its use. जैसे अगर आप कोई इमेज को सेंटर में लाना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो आप अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे केस में आपको सेंटर टैग या सेंटर एलिमेंट का यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल वाइज अगर आप यहाँ पे देखें तो IMG_SRC इज इक्वल टू c:/user/picture/desktop/html/claml.jpg जो फाइल है इसको हमने अलाइन इज इक्वल्स टू टॉप किया है, लेकिन अगर हमें इसे सेंटर अलाइन करना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सेंटर ओपन और सेंटर क्लोज के बीच में हम IMG टैग को रखे हुए हैं, तो ये इमेज जाके सेंटर में अलाइन होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन अलाइन द इमेज इन सेंटर ऑफ द वेब पेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैनॉट यूज, रिमेंबर इट ऑलवेज, वी कैनॉट यूज align is equals to center. If we want to align image in center of the web page, we must use center tag. Then after next topic is border attribute. तो by default an image has no border. image का कोई border नहीं होता है by default, but we can add border around the image using the border attribute. It accept value in terms of pixels. तो ऐसे केसेस में हम क्या लिखेंगे, HTML हेड टाइटल हेड क्लोज बॉडी ओपन सेंटर ओपन IMG_SRC इज इक्वल टू उसका पाथ। नाउ बॉर्डर इज इक्वल्स टू हमने 5 किया, तो बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5 किया मीन्स जो बॉर्डर होगा वो 5 पिक्सल थिक होगा। अब यहाँ पे आप इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस देख सकते हैं, पहले इमेज में कोई बॉर्डर नहीं है और दूसरे केस में यहाँ पे 5 पिक्सल्स का एक थिक बॉर्डर आ गया है। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज टू
add border in image. Now next है हमारा height and width attribute. The height and width attribute specify the height and width of the image respectively, either in the form of integer or in the form of percentage value. Now जैसे अगर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं img_src इज इक्वल्स टू इमेज का पाथ, हाइट इज इक्वल टू 70% एंड विड्थ इज इक्वल टू 70%, तो आपकी जो ब्राउज़र विंडो है उसके 70% हाइट और 70% विड्थ को ये कवर करेगा। इसके जगह पे हम पिक्सल में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे मान लो अगर हम वेब पेज में 10 इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि 10 की 10 इमेजेस सेम साइज़ की दिखे, तो ऐसे केस में हम यूनिफॉर्म हाइट एंड विड्थ यूज़ करेंगे। जैसे हर एक इमेज को इंसर्ट करते समय हमने हाइट ले लिया कि 50%, विड्थ ले लिया 30%। तो ऐसे केसेस में हर बार जो इमेज हम लगाएंगे वो फिज़िकली कितना भी बड़ा या छोटा हो, वो ब्राउज़र में उतना ही बड़ा दिखेगा। अगला है हमारा एच स्पेस एंड वी स्पेस। तो एच स्पेस एंड वी स्पेस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्पेस रिस्पेक्टिवली अराउंड द इमेज। द वैल्यू फॉर बोथ ऑफ दीज एट्रीब्यूट आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है img_src इज इक्वल टू funny1.jpg, align इज इक्वल टू राइट, एच स्पेस इज इक्वल्स टू 30, वी स्पेस इज इक्वल टू 30, हाइट 150, विड्थ 150। तो ये जो इमेज हमारा आ रहा है इसकी हाइट और विड्थ 150 पिक्सल्स की होगी, क्योंकि हाइट और विड्थ हमने दोनों को 150 पिक्सल रखा है। तो ये 150 पिक्सल हाइट और 150 पिक्सल विड्थ इसकी हो गई। और एच स्पेस और वी स्पेस हमने 30 पिक्सल्स का रखा है। तो ऐसे केस में दोनों तरफ हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी 30 पिक्सल्स का ये स्पेस लेगा, खाली स्पेस लेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज के बीच में 30 पिक्सल का स्पेस है। फिर दूसरी बार हमने फिर वही किया, img_src इज इक्वल टू funny1.jpg, align इज इक्वल्स टू लेफ्ट। यहाँ पे भी हमने एच स्पेस वी स्पेस 30 पिक्सल्स का रखा है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जो टेक्स्ट है उससे और जो हमारी इमेज है उसकी, उस दोनों के बीच में जो स्पेसेस हैं वो 30 पिक्सल्स का हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन insert images in our web page, inline images in our web page. Now today's task, create program that is given in your book and try to use all the attributes of img tag. Thank you. In case of any doubt, please contact me.